अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कशिश खबरनामे में मैं फरहाद आपका इस्तकबाल करता हूं। नाज़रीन, सबसे पहले पेश है हेडलाइंस। हैदराबाद को बैनुल अक़वामी तर्ज पर तरक्की देना चाहती है हुकूमत। असेंबली में गवर्नर नरसिम्हन ने रियासती हुकूमत का रोड मैप किया पेश। तेलंगाना असेंबली में डिप्टी स्पीकर का ओहदा अपोजिशन को दिया जाए, कांग्रेस सीनियर लीडर गीता रेड्डी ने किया मुतालबा। पुणे सॉफ्टवेयर इंजीनियर कत्ल मामले में हुई पेशरफ्त, हिंदू राष्ट्रीय सेना के सदर के खिलाफ मुकदमा किया गया दर्ज। और पाकिस्तान में हालिया हमलों के पेश नजर न्यूक्लियर प्लांट्स और दीगर हसास इदारों की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। तेलंगाना गवर्नर ESL नरसिम्हन ने कहा कि हुकूमत हैदराबाद को दुनिया की पसंदीदा जगह बनाना चाहती है, जैसे मेलबोर्न, वियना, वैंकूवर और टोरंटो की तरह। नरसिम्हन ने तेलंगाना लेजिस्लेचर के ज्वाइंट सेशन से खिताब करते हुए कहा कि रियासती सरकार हैदराबाद को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाना चाहती है और इसकी कोशिश है कि हैदराबाद को स्लम फ्री शहर बनाया जाए। उन्होंने मजीद कहा कि मूसा नदी को साफ करने के काम को अहमियत दी जाएगी और उसका तहफ्फुज किया जाएगा। बैरूनी सयाह को राग़िब करने के लिए एक्सप्रेस वेज, रैपिड मास ट्रांसपोर्ट सिस्टम और एयरपोर्ट भी कायम किए जाएंगे। पाइप ड्रिंकिंग वाटर, underground drainage systems and stormwater sewage systems, scientific collection and clearance of garbage will ensure control of pollution and maintenance of sanitation, leading to a clean, green, pollution-free Hyderabad. We will strive to make Hyderabad a slum-free urban conglomerate by establishing planned satellite townships as per the specific master plans, which will accommodate those proper poorer sections and migrants who come in search of a better future to the city of fortune, Bhagyanagari. To make it a delight for any international traveler and for local residents, facilities like expressways, rapid mass transport systems, domestic airports are planned to be undertaken strictly as per a visionary master plan, prepared in consultation with international agencies, incorporating the best of the most livable cities of the world, such as Melbourne, Vienna, Vancouver, Toronto, etc. In short, my government's vision for Hyderabad is a city of stability, good health, care, culture and environment, education and infrastructure. The face of IT sector would be transformed in Telangana with the implementation of the prestigious Information Technology Investment Region project in Hyderabad. In all, rupees 2.13 lakh crore investment would be channeled into various units in the state, opening 52 lakh employment opportunities for our youth directly or indirectly over the next 10 years. A skill development authority will be set up to provide gainful opportunities in the expanding economy. I am proud to inform this august House that Telangana contributes to 1/3 of the pharma production in India. To keep up this growth and further boost it, my government will lay emphasis on expansion of existing pharma, biotech and other industries. We wish to promote a pharma city as one of the satellite townships which will have government-run effluent treatment services to have complete pollution management. This will attract further investments in this sector in the coming years. In order to make Hyderabad a safe zone and an attractive investment destination, law and order will be the top priority for my government. There would be constant surveillance with a network of CC cameras and other advanced technical gadgets covering the entire urban agglomeration to make it a safe city on the lines of London and New York. Any offence detrimental to the interests of the state would be dealt with by an iron hand. Those responsible for any kind of disturbance or disorder in society would be taken to task without fear or favor. My government is of the view that better governance is possible at the field and village level if the elected public representatives, particularly MLAs and MPs, are easily accessible to people. To facilitate this end,
we propose to take up construction of permanent office cum residence in the respective constituencies. This arrangement will enable people to access their MLAs and MPs in times of need. Keeping in view the कांग्रेस की सीनियर लीडर गीता रेड्डी ने मुतालबा किया है कि तेलंगाना असेंबली के डिप्टी स्पीकर का ओहदा अपोजिशन को दिया जाना चाहिए। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हुक्मरान जमात टीआरएस ने अपने तौर पर डिप्टी स्पीकर के उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। हिमाचल प्रदेश की ब्यास नदी में गरकाब हुए तुलबा में से एक और लाश को बुध के रोज बरामद किया गया है। श्रीलिंगमपल्ली के शब्बीर हुसैन शेख की लाश आज बरामद की गई है, जबकि अभी भी 18 तुलबा और एक टूर गाइड लापता बताए गए हैं। बेटी की लाश को देखकर शब्बीर की वालिदा जज्बात से बेकाबू हो गई। लापता तुलबा की तलाश के लिए इमदादी सरगर्मियां अभी भी तेजी से जारी हैं। रियासती वजीर दाखिला एन नरसिम्हा रेड्डी भी मुकाम वाक़े पर मौजूद हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि मरकजी हुकूमत से फौज की मदद फराहम करने की दरख्वास्त की गई है। इस दौरान हिमाचल प्रदेश की पुलिस ने लॉर्ड GDM इंतजामिया के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज कर लिया है। मीर चौक पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़े काली खबर आगा टावर्स में दोहरे कत्ल की वारदात पेश आई है। नामालूम अफराद ने रूडी शीटर असालत अली उर्फ प्रिंस के मकान में दाखिल होकर उसकी बीवी और साली की बेटी का गला काट कर कत्ल कर दिया। महलूकीन में 45 साला समीना और 16 साला दानिया अनम शामिल हैं। दानिया अनम साउथ अफ्रीका में अपने अहल खाना के साथ रहती थी, लेकिन वह इन दिनों उसूल तालीम के लिए हैदराबाद में अपनी खाला के साथ रिहाइश पजीर थी। दानिया अनम रोडी शेटर की साली की बेटी बताई गई है। इत्तला मिलते ही पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है, जबकि डीसीपी ने जाए वारदात का जायजा लिया। मुशीराबाद के भोलकपुर में वाक़े स्क्रैप के गोदाम में हुए छोटे से धमाके में 6 बच्चे जख्मी हो गए हैं। जख्मियों में मोहम्मद सोहेल और मोहम्मद आबिद की हालत नाजुक बताई गई है। खबर है कि ये बच्चे स्क्रैप के गोदाम में किसी पुरानी अशिया की तोड़फोड़ कर रहे थे कि ये धमाका हुआ। धमाके की वजह का इल्म नहीं हो सका है। जख्मी बच्चों को मुख्तलिफ अस्पतालों में इलाज के लिए दाखिल किया गया है। इत्तला मिलते ही क्लोज टीम और एसीपी ने जाए हादसे का जायजा लिया। मेयर बल्दिया अजीमतर हैदराबाद मोहम्मद माजिद हुसैन ने अस्पताल में जख्मियों की इयादत के बाद जाए हादसे का भी दौरा किया है। उन्होंने कहा कि हादसे की वजूहात की जांच होगी और बच्चा मजदूरी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ఈరోజు పొద్దున 10:10 గంటల సమయంలో ఇక్కడ నలుగురు బాలలు ఈ యొక్క స్క్రాప్ను ఈ కాలిపోయిన బల్బులను పలగొడతా ఉంటే సుత్తితో పలగొడతా ఉంటే అందులో నుంచి ఒక బ్లాస్ట్ లాంటి శబ్దం వచ్చేసి ఇద్దరికి ఒక ఆయనకు సీరియస్ ఇంజరీస్ అయినాయి, ఒక ఆయనకు మైనర్ ఇంజరీస్ అయినాయి. వాళ్ళిద్దరు గాంధీ హాస్పిటల్ చికిత్స పొందుతున్నారు. ఎవరైతే ఈ యొక్క ఈ స్క్రాప్కి సంబంధించిన మోడల్ ఉన్నారో ఎవరైతే వాళ్ళని ఈ చైల్డ్ లేబర్ని ఎవరైతే తీసుకొచ్చారో వాళ్ళ మీద చట్ట ప్రకారం తగిన చర్యలు తీసుకోబడుతుంది. नाज़रीन आइए अब देखते हैं अहम कौमी खबरें। पुणे में सॉफ्टवेयर इंजीनियर मोहसिन शेख के कत्ल में पुलिस ने हिंदू तंजीम हिंदू राष्ट्रीय सेना के सरबराह धनंजय देसाई के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है, जबकि फिलहाल देसाई पुलिस हिरासत में है। इस केस में अब तक 19 लोगों की गिरफ्तारी अमल में आ चुकी है। देसाई के खिलाफ इससे पहले भी कई मामले दर्ज हैं। देसाई पर तावान, फसाद, इश्तियाल अंगेज तकरीर देना, इश्तियाल अंगेज पॉम्फलेट तकसीम करना जैसे 20 केसेस दर्ज हैं। फेसबुक पर शिवाजी महाराज और बाल ठाकरे के काबिल एतराज तस्वीर अपलोड होने के बाद पुणे में मुस्लिम IT पेशवाराना मोहसिन शेख का कत्ल हुआ था। हिंदू राष्ट्रीय सेना के कारकुनों पर शेख को पीट कर कत्ल करने का इल्जाम है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में सदर के बयान पर बहस का जवाब देते हुए अपील की कि वो नए हैं और अगर उनसे गलती हो जाए तो उन्हें माफ कर दिया जाए। उन्होंने ऐवान को यकीन दिलाते हुए कहा कि सदर जमहूरिया के बयान में जो दावे पेश किए गए हुकूमत उसे मुकम्मल करने की कोशिश करेगी। उन्होंने कहा कि सदर जमहूरिया के बताए रास्ते में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। साथ ही मोदी का कहना था कि हुकूमत को अवाम की उम्मीदों पर खरा उतरना है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, ये सदन में मैं पहली बार आज मेरा प्रवेश भी नया है और भाषण का अवसर भी पहली बार हो रहा है।
इस सदन की अधीर रंजन जी प्लीज। इस सदन की संसदीय परंपराएं बहुत ही उच्च रही हैं। इस सदन में काफी अनुभवी 3-3, 4-4 दशक से राष्ट्र के सवालों को उजागर करने वाले, सुलझाने वाले, लगातार प्रयत्न करने वाले वरिष्ठ महानुभाव भी इस सदन में विराजमान हैं। बीजेपी ने बुध को कहा है कि 16वीं लोकसभा के दौरान जेर अल्तवा खवातीन रिजर्वेशन बिल को मंजूर करा लिया जाना चाहिए। वजीर खारजा सुषमा स्वराज ने सदर जमहूरिया के बयान पर शुक्रिया तजवीज के दौरान कहा कि कई पार्टियों ने खवातीन को बाख्तियार बनाने की बात की है, लेकिन बीजेपी ने ही गुजरात को खातून वजीर आला देकर इस सिमत में थोड़ी बहुत कोशिश की है। वजीर खारजा ने मजीद कहा कि मरकजी काबीना में 25% खवातीन हैं और लोकसभा स्पीकर भी खातून हैं। पार्लियामेंट में खवातीन रिजर्वेशन बिल पेश किए जाने पर तमाम अरकान से हिमायत करने की अपील करने के बाद सुषमा स्वराज ने कहा कि लोकसभा में कांग्रेस लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे से वो खवातीन रिजर्वेशन बिल पर हिमायत की अपील करती हैं। भारत संघीय व्यवस्था वाला देश है, परंतु काफी वर्षों से इसकी संघीय भावना को कमजोर किया गया है। राज्यों और केंद्र को सामंजस्यपूर्ण टीम इंडिया के रूप में काम करना चाहिए। राष्ट्रीय मुद्दों पर राज्यों के साथ सक्रियता से कार्य करने के लिए मेरी सरकार राष्ट्रीय विकास परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद जैसे मंचों को पुनः सशक्त बनाएगी। अध्यक्ष जी, संघीय ढांचा इस देश के संविधान का मूल प्राण है। इसी तरह से संस्थाएं सीवीसी, सीएजी, सीबीआई ये वो लोकतंत्र के खंभे हैं जिन्हें निष्पक्षता से काम करने का अधिकार होना चाहिए। महाराष्ट्र के वजीर दाखिला आर पाटिल ने बुध को खवातीन पर मजालिम के मौजू पर हो रही बहस के दौरान कहा कि खवातीन का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ मुश्किल काम है। पाटिल ने कहा कि अगर हर घर में पुलिस तैनात कर दी जाए तब भी खवातीन के खिलाफ मजालिम खत्म नहीं हो सकते। उन्होंने कहा कि खवातीन के खिलाफ तशद्दुद अखलाकी कदरों में तनज़्ज़ुल की वजह से बढ़ा है। इसके अलावा टीवी और दीगर ज़राए से फहाशी का बढ़ना भी खवातीन के खिलाफ हो रही ज्यादती की एक अहम वजह है। नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया के कारकुनों ने दिल्ली यूनिवर्सिटी में 4 साला डिग्री कोर्स को खत्म करने के मुतालबे पर बुध को इंसानी वसाइल के फरोग के वजीर स्मृति ईरानी के घर के सामने मुजाहरा किया। नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया की एक रिलीज के मुताबिक इस मुतालबे पर जोर देने के लिए इसके कारकुनों की 5 रोजा भूख हड़ताल दिल्ली यूनिवर्सिटी में शुरू की थी, लेकिन पुलिस ने उन्हें जबरन हटा दिया, जिससे यह हड़ताल खत्म हो गई। कल रात को आकर पुलिस ने जोर जबरदस्ती से हम लोग को उठा दिया। हम लोग जानना चाहते हैं क्यों भाजपा सरकार का हस्तक्षेप है। भाजपा सरकार नहीं चाहती है इस देश में लोकतंत्र कायम रहे। अगर हम शांतिपूर्वक बैठे हैं, हम लोगों को क्यों जोर जबरदस्ती करके उठाया गया। और हम लोग ये चाहते थे कि यूनिवर्सिटी से आए, वीसी आए और हम लोगों का मेमोरेंडम ले, हम लोगों से मेमोरेंडम तक नहीं लिया गया। ये कैसी सरकार है? ये कौन से अच्छे दिन आ गए? छात्रों का शोषण हो रहा है। अगर यही सब रहेगा तो छात्रों को रोड पर निकलना पड़ेगा। आज जो हमारा मुख्य कारण था वो ये था कि तब हमने 3 महीने बच्चों के बीच में जाके पूछा कि उन्हें FYUP पसंद है या नहीं, तो 1 लाख में से 95% जो बच्चे थे उनका ये था कि उन्हें FYUP पसंद नहीं है और दिल्ली यूनिवर्सिटी से FYUP खत्म होना चाहिए, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी आप ग्रेजुएशन करते हो तो वो 3 साल की होती है और सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी ने एक ऐसा प्रोग्राम निकाला जो 4 साल का है। जो लोग बाहर से आते हैं, जो बच्चे बाहर से आते हैं, दिल्ली एक इतना महंगा शहर है, उनके लिए 1 साल का खर्चा मतलब एक ऐसा बर्डन उनके ऊपर पड़ता है और ग्रेजुएशन उनको वही मिलती है जो बाहर 3 साल की होती है। तो हमारा जो मेन एजेंडा है वो यही है ABVP को, स्मृति ईरानी को कहने का कि FYUP वापस लो। और हम 5 दिनों से भूख हड़ताल पे बैठे थे, उन्होंने ना हमारी कोई बात सुनी, ना हमारा कोई सहयोग किया, जोर जबरदस्ती से हमें हटाया जा रहा है। We feel ashamed that Smriti Irani is the HRD minister because she is just 12th pass, and in today's world, even if you go for the slightest job or the smallest job, they ask you for a degree. And Modi ji has given such a huge ministry, such an important portfolio to Smriti Irani ji. So we are over here protesting against the 4-year undergraduate program.
because Delhi University doesn't have infrastructure, they don't have teachers, they don't have faculty. They are just fooling the students over there, and there is so much of anger between the students. NSUI will keep on protesting and keep on sitting on hunger strike unless the 4-year program is taken back. नाज़रीन, आइए अब देखते हैं अहम बैनुल अक़वामी खबरें। पाकिस्तानी हुकूमत ने कराची में हुए मुसलसल 2 दहशतगर्दाना हमलों के पेश नजर मुल्क के सभी न्यूक्लियर प्लांटों और फौजी अड्डों की सिक्योरिटी बढ़ा दी है। बताया गया है कि कराची के जिना बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर दहशतगर्द जितनी आसानी से दाखिल होने में कामयाब हुए वो हुकूमत और फौज के लिए बाअस तशवीश है। उसे खुफिया महकमे की एक बड़ी नाकामी भी तस्वुर किया जा रहा है। इसी के मद्देनजर मुल्क में सभी न्यूक्लियर तनसीबात और फौजी अड्डों की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। दूसरी जानिब पाकिस्तान में मुल्क की सतह पर हालिया दहशतगर्दाना हमलों के पेश नजर पाकिस्तानी फौज ने जंगजुओं के ठिकानों पर फिजाई हमलों में शिद्दत लाने का फैसला किया है। अमेरिकी सदर बराक ओबामा ने मिस्र के सदर अब्दुल फताह अल सीसी को मिस्र के सदारती इंतखाबात में तारीखी फतह पर मुबारकबाद देते हुए कहा कि अमेरिका मिस्र के साथ मिलकर काम करने के लिए पाबंद अहद है। व्हाइट हाउस ने एक बयान में बताया कि ओबामा और अल सीसी के दरमियान गुज़िश्ता रोज बातचीत हुई, जिसमें ओबामा ने अल सीसी को मिस्र का सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी है। ओबामा ने कहा कि मिस्र के लोगों की सियासी, इक़्तिसादी और समाजी ख्वाहिशात को पूरा करने में अमेरिका अपनी हिमायत देगा। एक मिस्री अदालत ने मुल्क पर कई दहाइयों तक हुकूमत करने वाले साबिक सदर हुस्नी मुबारक के खिलाफ तहरीक चलाने वाले कारकुन अला अब्दुल फताह को 15 बरस कैद की सजा सुना दी है। अब्दुल फताह के वकील के मुताबिक ये सजा उन्हें एहतजाज के हवाले से मुल्क के कानून के खिलाफ वर्जी और दीगर इल्जामात पर सुनाई गई है। अब्दुल फताह 2011 में हुस्नी मुबारक के खिलाफ चलने वाली तहरीक के नुमाया तरीन कारकुन थे। ये फैसला साबिक फौजी सरबराह अब्दुल फताह अल सीसी के ओहदे सदारत संभालने के 3 रोज बाद सुनाई गई है। ईरानी सदर हसन रूहानी ने कहा है कि तेहरान हुकूमत आलमी ताकतों के साथ जारी जौहरी मुज़ाकरात के दौरान किसी हतमी डील को मुमकिन बनाने के लिए भरपूर कोशिश करेगी। ईरान और अमेरिका के दरमियान जिनेवा में मुज़ाकरात जारी रहे। मंगल को मुज़ाकरात के बाद ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा और जौहरी मुज़ाकरातकार अब्बास इराक़ची ने कहा कि मुज़ाकरात का नया दौर बामाने रहा है, जबकि इख्तलाफात को दूर करने के लिए मुशावरत का सिलसिला जारी है। उन्होंने मुज़ाकरात को तनाव से भरा मगर मुस्बत करार दिया है। ईरान और आलमी ताकतें 20 जुलाई से कबल इब्तिदाई डील को तवीलुल मुद्दती बुनियादों पर कायम करने की कोशिश में है। उधर तुर्की का दौरा कर रहे ईरानी सदर ने कहा कि ईरान अपने जौहरी प्रोग्राम और नाजायज पाबंदियों पर मुज़ाकरात करने के लिए तैयार है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल बान की मून ने ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म टोनी एबेट से मुलाकात की और शाम, यूक्रेन और फिजी की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। मून के तर्जुमान ने मीटिंग के बाद नामानिगारों को बताया कि मून ने अक़वाम मुत्तहिदा को हिमायत देने के लिए ऑस्ट्रेलिया का शुक्रिया अदा किया और मुख्तलिफ उमूर पर बातचीत की। उन्होंने बताया कि बान की मून ने दुनिया की 20 बड़ी मायशियतों के ग्रुप में इसकी मजबूत क़यादत के लिए ऑस्ट्रेलिया की तारीफ की है। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। हैदराबाद को बैनुल अक़वामी तर्ज पर तरक्की देना चाहती है हुकूमत। असेंबली में गवर्नर नरसिम्हन ने रियासती हुकूमत का रोड मैप किया पेश। तेलंगाना असेंबली में डिप्टी स्पीकर का ओहदा अपोजिशन को दिया जाए, कांग्रेस सीनियर लीडर गीता रेड्डी ने किया मुतालबा। पुणे सॉफ्टवेयर इंजीनियर कत्ल मामले में हुई पेशरफ्त, हिंदू राष्ट्रीय सेना के सदर के खिलाफ मुकदमा किया गया दर्ज। और पाकिस्तान में हालिया हमलों के पेश नजर न्यूक्लियर प्लांट्स और दीगर हसास इदारों की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। इस खबरनामे में फिलहाल इतना ही। मजीद ताज़ा तरीन खबरों का हाल जानने के लिए देखते रहिए उर्दू टीवी। अल्लाह हाफिज।